پھیپڑوں کے کینسر سے آگاہی کا یہ مہینہ بنایا جا رہا ہے، اور آج کے دن کی تو اپنی ایک امپورٹنس ہے پھیپڑوں کی بیماری سے متعلق۔ ظاہر ہے کہ بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیپڑوں کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اور تمباکو نوشی کو باقی تو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہو سکتا ہے، اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، کوئی کیمیکل آپ نے اس طرح کا انہیل کر لیا، کیونکہ کینسر کی وجوہات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن سگریٹ نوشی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ اچھا، ایک تحقیق سامنے آئی ہے، وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ جی 35 سگریٹ اگر آپ پئیں گے تو اس سے پھیپھڑوں کے کینسر سے مرنے کا امکان 40 گنا، مطلب یعنی کہ 34 پئیں گے تو یو ول بی فائن۔ نہیں ایسا نہیں، ہاں یہ مجھے سمجھ میں نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، آپ کو لگ رہا تھا نا کہ جی سگریٹ آپ پی رہے، چلو میں اپنی پھیپڑے ساڑا ہوں، نہیں بھائی نہیں، آپ اپنے پھیپڑے نہیں ساڑے، آپ تو دھواں لے کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ دھواں انہیل کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو تو کوئی فلٹر بھی نہیں ہوتا نا، کہ آپ کے سگریٹ میں تو چلو برائے نام ہی صحیح فلٹر لگا ہوتا ہے۔ اب اٹس ناٹ اونلی سگریٹ، وی ہیو ویپ، وی ہیو ای سگریٹس، وی ہیو شیشہ، ہاں جی ٹھیک ہے، مطلب یہ تمام ایون حقے کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑا صاف ستھرا ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا، بالکل بالکل، یہ تو پانی میں سے گزر کے جو دھواں آ پانی جاتا سے ہے گزر کے، نہیں نہیں فلیور ہوتے، کچھ بھی نہیں، فلیور ہوتا ہے نہیں بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ویسے لوگوں کو تاکید یا تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سگریٹ پینا چھوڑ دیں، بچوں کو سکھائیں، ہم تو بچوں کو تاکید کرتے ہیں نہ پیے۔ بھائی بچہ اگر اپنے باپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ ایک بڑی زبردست سی وہ یاد ہے پہلے اشتہار آیا کرتا تھا کہ باپ کو دیکھتے دیکھتے بچے پینسل جلانے، وہ چھوڑ دیں، ہم باپوں پہ ڈال رہے ہیں۔ جو میں سارے پسند ہوتے ہیں نا ہیروز، یہ بھی ان کا سٹائل ہی ہوتا ہے، یہ رجنی کانت وغیرہ سے سگریٹ لگاتے تھے نا، ہمیں جو اچھا میٹ ڈیمن وغیرہ اچھے لگتے ہیں، وہ بھی سگریٹ ہی پی رہے ہوتے تو اچھے لگتے ہیں۔ خیر جی، ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے بھائی ہم تو ششکے میں پی لیتے سگریٹ، اور آپ تو سگریٹ پی لیتے، لیکن جو ساتھ آپ کے بیٹھا ہوا شخص، اس کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے اس سے، اور اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ موجود ہیں پلمونالوجسٹ ڈاکٹر فیصل اسد صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بھی ہم نے اتنی تمہید بھی باندھی ہے، جو ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے، تو کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اب تو اٹس ناٹ اونلی سگریٹ، ناؤ وی ہیو ویپ، وی ہیو ای سگریٹس، وی ہیو شیشہ، اور دوسرا یہ پیسو اسموکر کی زندگی زیادہ رسک پر ہوتی ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو آج کا دن کیونکہ عالمی طور پہ منایا جا رہا ہے پھیپڑوں کی اس بیماری کے حوالے سے جو تمباکو نوشی میں مین رول پلے کرتی ہے، اس کو کہتی ہیں آج کا دن ہے ورلڈ COPD ڈے، کرونک obstructive pulmonary disease، یعنی کہ پھیپڑوں کی جو نالیاں وہ سکڑ جاتی ہیں تمباکو نوشی کے ذریعے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 35 سگریٹیں، اس میں تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 10 سے 15 سال لگتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، تب جا کر یہ بیماری سامنے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مہربانی فرمائی کہ ہمارے لنگ میں کیپیسٹی بہت رکھی ہے۔ پہلی سگریٹ سے ہی، جس دن پہلی سگریٹ پی جاتی ہے، جو کہ عام طور پہ ٹین ایج میں پی جاتی ہے، وہاں سے ہم یہ بری عادت لیتے ہیں، پہلی سگریٹ سے ہی پھیپڑوں کے جو خلیات ہیں، جو سیلز ہیں، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا 30 سے 35% جب یہ سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں تب یہ بیماری سامنے آتی ہے۔ اس وقت عمر لگ بھگ 40 کے قریب پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ 40 سال میں صرف ظاہر ہوتی ہے، یہ شروع تو جب ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ میں تو بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو 40 سال کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، اب اس لیے یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا بالکل کہ سگریٹ تو اپنی جگہ ہے، وہ ہر سگریٹ آپ کو نقصان دے رہی ہے، جتنی زیادہ پی رہے ہیں اتنی زیادہ نقصان دے رہی ہے، بیماریاں کر رہی ہے، کینسر بھی کر رہی ہے۔ ویپنگ کو اب یہ ثابت کر دیا گیا کہ تحقیق نے بھی ثابت کر دیا کہ ویپنگ سے بھی ٹاکسیسٹی بے تحاشا لنگز میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ای سگریٹ سے بھی، شیشے کے حوالے سے تحقیق ہو چکی ہے، لوگ جائیں اور دیکھیں انڈیپینڈنٹ ویب سائٹس پہ جا کر کیا پبلش ریسرچ ہے کہ 1 گھنٹے کا جو شیشہ سیشن ہے وہ لگ بھگ 8 سے 9 سگریٹ کے پیکٹس کے برابر ہے۔ 8 سے 9 سگریٹ پیکٹ کی وجہ کیا ہے؟ جو تحقیق نے ثابت کر دیا کہ ایک سگریٹ اسٹک سے 500 ml دھواں خارج ہوتا ہے، جو والیوم وائز ہے، اور 1 گھنٹے کی اسموکنگ سے جو ہیڈ کہلاتا ہے اس کا سر، اسے لگ بھگ 90,000 ml دھواں خارج ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں یہ ایکولز ٹو آلموسٹ 180 ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ تو ہو گیا، اس کے ساتھ لوگ آکسیجن شارٹس اور نہ جانے کیا کیا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ ایک تو بالکل سائنٹیفکلی کوئی اس کی آج تک پروو نہیں ہو سکے، یہ بالکل غیر سائنٹیفک معلومات ہیں، یہ ٹاکسک ہے ہمارے جسم کے لیے۔ آکسیجن جو میڈیسنل یوز میں بھی ہے، ذہن میں رکھیے، وہ ٹاکسک ہوتی ہے، وہ بھی ٹاکسک ہوتی ہے۔ ہم اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو پڑھا دیں گے غیر ضروری آکسیجن تو مریض کو بھی مرض میں بھی نہیں دینی ہے، کیونکہ آکسیجن از اے ٹاکسک سبسٹنس بائی آل مینس، یہ صرف اتنی ہی مقدار میں دی جاتی ہے جتنی مریض کو ضرورت ہو، ورنہ کیونکہ یہ بالکل تھیراپی، اٹس اے میڈیسن بیسیکلی وین اٹ از سپلیمنٹڈ ٹو دی پیشنٹ۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنس کے ساتھ ہمیں یہ آگہی پھیلانی ہے۔
पाकिस्तान के बारे में तखमीना लगाया जाता है कि 2 से 2.5% लोगों में COPD पाया जाता है। अच्छा। अगर हमारी पॉपुलेशन को आप 22 करोड़ भी गिन लें तो ये 42-43 लाख बनती है। और इससे ज्यादा ही होगा तखमीने से। ये यकीनन सर इससे मुझे एक ज्यादा चीज़ ये बताएं कि हम इससे अक्सर ज्यादा। पैसिव स्मोकर्स की बात करते हैं कि वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, उसकी वजह क्या है? एक शख्स इनहेल कर रहा है, सपोज ये सिगरेट नोशी कर रही हैं, मैं साथ बैठा हूँ, तो इनसे ज़्यादा खतरा मुझे क्यों लाहक है? अच्छा, इनसे ज्यादा आपको साइंटिफिकली तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा लायक है, लेकिन एक उस शख्स से जो कि ना खुद पी रहा है ना सिगरेट पीने के वाले के बराबर में, उससे कई गुना ज्यादा आपको लाहक है। अच्छा। उसकी वजह क्या है? एक तो धुआं वो खारिज हो रहा है। सिगरेट के अंदर तकरीबन 7,000 के करीब केमिकल कंपाउंड्स हैं। अच्छा। जब ये जल जाती है, बर्न होता है टोबैको, तो 60 के करीब इसमें कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। कार्सिनोजेंस 60 के करीब वो चीजें जो कैंसर कराती हैं। ठीक है। मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से सबके इल्म में ये बात लेकर आऊं कि इसमें टॉयलेट गैस भी है, अच्छा। मीथेन जिसे आप कहते हैं, इसमें कैडमियम भी है जो कैंसर कार्सिनोजेनिक है, इसमें लिथियम भी है, सो एंड सो फोर्थ। एक तो ये तैयब गिजा नहीं है, हलाल हराम की बहस से हट भी जाएं साफ तो इसको नहीं, तैयब नहीं कहा जा गर्दाना सकता। जा हमें तो सकता, हिदायत जारी की गई है, या अय्युन्नासु कुलू फिल अर्दि मिन तैयबात व हलालन तैयबा, कि आपने सिर्फ हलाली तैयब चीजें खानी है। साफ। तो ये साफ तो हो ही नहीं सूरत सकती, की इससे खूबसूरत अंदाजा बात है। करें आपके। हम हलाल हराम को छोड़ें। अच्छा, वैसे कार्सिनोजेनिक बात है, एक तैयब से याद आया, हमारे तो बहुत सारे हम कहीं जाते हैं खाने, बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं तो वहाँ पे तैयब ग़िज़ा हमें तो वहाँ पे भी नहीं मिल रही। लेकिन ये तो मुज़र देखें से हमारे तो हाँ, सामने है ना, मुज़र से तो ये तो जो exactly मक्खी तुम आपके जान सामने के आपके पूछते कप हैं। में गिर गई है, इसको कैसे आप इसको tolerate कैसे कर अच्छा, एक सकते और हैं? चीज़ भी है, ये इससे थोड़ा सा हटके, सिगरेट से थोड़ा हटके, ये जो बसों का धुआं वगैरह हम निकल रहे हैं और एक दफ़ा उसने वो कर दिया, उसके अंदर भी कार्सिनोजेनिक्स वगैरह होते हैं? अच्छा देखिए, वो भी टॉक्सिसिटी है, कोई शक नहीं है उसमें। आमतौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं, वो मिलकर फिर एग्रेवेट करते हैं हर मामले ओके को। ओके ओके। लेकिन सिगरेट से ज्यादा बड़ा इस वक्त बराह रास्त खतरा कोई नहीं हो सकता। बच्चों से अवेयरनेस शुरू करें हम। मेरी अपील है वालिदैन से, वो खुद रोल मॉडल बने। ये ना समझे कि हम तो सिगरेट पियेंगे हमारे बच्चे नहीं पियेंगे, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आप असातिज़ा से मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, वो बच्चों से ही प्राइमरी सेक्शन से ही आगाही शुरू करें, हर क्लास में मैंडेटरी कर दें, ताकि बड़े हो टीन एज तक जहां सिगरेट शुरू करती है बच्चा इतना ज्यादा सेंसिटाइज हो चुका हो, ना खुद पिए ना अपने माहौल में पीने दे। और इसके अच्छा, और असरात, दूसरा ये जो बाइक्स पर हम स्पेसिफिकली देख लें, अभी पिछले दिनों लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा थी, मैं भी गई हुई थी घर अपने, तो इतनी स्मोक थी कि ना घर से सेहन में नहीं जाया जा रहा था, और अगर सेहन में जाते थे आंखों में भी होती थी और बहुत सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये सोची थी कि स्मोक के टाइम में ये जो हमारे बाइकर्स भाई हैं जो मतलब स्पीड में जाते होंगे, तो जब वो स्मोक ये इनहेल करते होंगे जो हमसे नॉर्मल से उसमें सांस नहीं लिया जा रहा, तो उनके फेफड़ों के लिए कितने मुज़र से बहुत मुज़र है। मेरे को दो राय नहीं हो सकती। देखिए, हमारे फेफड़े तो खुद ऑक्सीजन नहीं बनाते, ये हवा तो हम बाहर से अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारे फेफड़ों की, यानी कि हमारी सेहत की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आसान बात कर हमारी दी आपने यहाँ पे। हमारी लंग्स ही तो हैं जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही है। तब जब यही बीमार हो गए, मैं आपके एक और भी अर्ज करूँ आपके प्रोग्राम तक, उससे ये जो COPD की हम बात कर रहे हैं खास तौर पे, जब ये लाहक हो जाती है तो सबसे पहले जो पीछे हटते हैं फैमिली मेंबर्स, इस शख्स से पीछे हटना शुरू करते हैं। मैंने देखा है माएँ अपने छोटे बच्चों को इन दादाजी से पीछे हटाती हैं, उनके पास न जाना, वो खास रहे हैं, उनसे बीमारी लग जाएगी। बचे हम उस दिन से कि जब हम अपने घर वालों के साथ ना बैठ सकें या हम उनकी बीमारी का बाइस बन जाएं। एक और चीज़ मुझे बताएं कि लाइक मेरे मरहूम वालिद, उनको अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज किया गया था, ही कुडंट सर्वाइव लेटर, लेकिन जब उनकी केस फाइल सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये एक्सेसिव स्मोकर थे। मैंने कहा भाई वो तो 90s की बात थी, यानी कि मेरे होश संभालने से पहले की, तो उस वक्त उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया था। उस वक्त डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि उस वक्त भी जो उन्होंने स्मोकिंग की थी और चेन स्मोकिंग की थी, उसके असरात अभी भी मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने छोड़ दी और 20 साल से नहीं की, 30 साल से नहीं की तो वो असर चला गया, तो ऐसा रहता है। बिल्कुल, देखें, जो COPD का नाम ही है कि ये रिवर्स नहीं होगा, ये वापस अपनी जगह नहीं जा सकता। जो सेल डैमेज हो गया लंग्स के, वो डैमेज हो गया। तहकीक ने ये बता दिया, जो लोग शुरू भी कर लें टीन एज में, अगर ये 30 साल की उम्र से पहले छोड़ देते हैं तो जो उनका लंग फंक्शन नीचे की तरफ जाता है, डिक्लाइन में जाता है, वो नीचे जाने के बावजूद भी इतना मुनासिब रहता है कि बाकी सारी जिंदगी उसके जरिए गुजारी जा सकती है। लेकिन जितनी देर से ही तंबाकू नोशी तर्क करेंगे,
डिक्लाइन फिर उतना ही ज़्यादा होगा और फिर उतनी ही ज़िंदगी इनकी मुतासर होगी छोड़ने के बावजूद भी। डॉक्टर साहब एक और चीज़ हमारे हमने देखा है कि वो स्पेसिफिकली लोग जो कि इंजीनियरिंग के शोबे से जिनका ताल्लुक होता है, जो प्रोडक्शन की फील्ड से इनका ताल्लुक होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा उनका जाना होता है, तो वहाँ पे भी देखा जिस तरीके से धुआं होता है, तो बहुत सारे हमारे अपने भी कुलीग उनकी केमिकल्स होते हैं। तो हमारी भी अपने कुलीग के फादर की डेथ हुई, उनको फेफड़ों का कैंसर था, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक सिगरेट भी नहीं पी थी। तो उसकी क्या रीज़न थी? यही धुआं। एज अ फिजिशियन अपने मरीजों से हिस्ट्री लेते हैं, हम सिर्फ स्मोकिंग पे रुकते नहीं है, हमें लाजमी चेक करना होता है कि उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, हमें लाजिम चेक करना होता है कि उनका ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट कैसा है। पूरी दुनिया ने ये बात जान ली थी और आपको पता है एसओपीज इन प्लेस हैं बहुत बरसों से कि जी वर्क प्लेस पर कैसे आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है जहां कहीं भी फ्यूम्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्सपोजर हो सकती है। हमारे यहाँ तो आप फिर इसीलिए हम ये खिदमत कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी भी है इसमें, आपने टाइम निकाला कि लोगों को पता चले कि जी आपकी सेहत बराह रास्त आपके माहौल पे मुनहसर है। आपको याद नहीं है कुछ अर्सा पहले वो ये सीव्यू की साइड पे डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में एक स्मेल वगैरह, बिल्कुल ये अक्सर वैसे आती है, उसका पता भी नहीं चला, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। गाँव देहात में जो खवातीन जो लकड़ी जला के खाना बनाती हैं और उसमें तो आप जितनी फूंके मारेंगे तो और उतनी ही वो आग भड़केगी ताकि आपकी हंडियाँ चलती रहेगी। तो इज दिस द रीजन कि गांव देहात में भी खवातीन बहुत सारी क्योंकि और पता भी नहीं चलता कि उनको क्या मसला है, वो बेचारी जिंदगी भर खांसती रह जाती हैं, लेकिन क्या मसला है? जी बिल्कुल, शायद ही कोई हॉस्पिटल में ऐसा राउंड है रोजाना जहां हमारे पास हमारी इस तरह की बुजुर्ग खवातीन नहीं मौजूद होती जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी है। हम उनसे जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि घर पे बायोफ्यूल इस्तेमाल करती रही हैं, लकड़ियां जलाती रही हैं, जो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको भी वही बीमारी लायक हो जाती है जो सिगरेट पीने वालों को होती है। बिल्कुल। फेफड़ों में तो सोजिश होगी, आप इसमें कोई भी शक्ल दाखिल करें धुएं की, तंबाकू वाला धुआं दाखिल होगा तो कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा तो यही है पैगाम कि हम सेंसिटाइज करें, अपने बच्चों से शुरू करें इस अवेयरनेस को, वालिदैन भी, असातिज़ा भी, सिगरेट भी, ई सिगरेट भी, वेपिंग भी, हुक्का भी, तंबाकू की वो शक्ल भी जिनको जलाया नहीं जाता, पान और गुटखा भी। तंबाकू हर शक्ल में कार्सिनोजन है, ये हर शक्ल में बीमारी करता है, भले पान में लें, गुटखे में लें, मावा हो जिस शक्ल में, क्योंकि तंबाकू जब ये पौधा ग्रो करता है तो इसके अंदर कार्सिनोजेनिसिटी मौजूद है, टोबैको के अंदर इनहेरेंटली। तभी फेफड़ों के कैंसर से बचेंगे तो मुंह के कैंसर बहुत आम है। आप जाके हमारे एनटी कॉलेज से बात करें, बेतहाशा मुंह का, जबान का कैंसर मौजूद है। मेन वजह उसकी यही सामने आ रही है, गुटखा, मावा, पान, तंबाकू। अच्छा, और डॉक्टर साहब हमने इतनी सी अवेयरनेस के वाले से बात कर ली ना, जो लोग खरीदने जाते हैं सिगरेट तो वो सिगरेट की डिब्बी के ऊपर भी ऐसी शक्ल होती है जो आप देख नहीं पाते, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि ये लोग खरीदते हैं। देखिए पूरी दुनिया ने ये कदम उठाए, उन्होंने इस पे पाबंदियां लगाई हैं, किस उम्र से कम नहीं बेची जाती, टैक्स बढ़ाए हैं पूरी दुनिया ने। ये पूरी यूरोप की बताओ, नॉर्थ अमेरिका में 21 साल से कम उम्र को सिगरेट नहीं बेची जा सकती। तो फिर भी आजकल का लेकर मामला है, हमारे यहाँ से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। फिर लाजमी कर दिया है पूरी दुनिया ने कि 70% से ज्यादा जो पैकेट होगा उस पर तस्वीर होनी चाहिए, उसका जो हजम बनता है इतनी वाज़ेह तस्वीर होगा। लेकिन जब तक आप इसको बहुत जल्दी उम्र से नहीं अवेयरनेस देंगे, तस्वीर उस वक्त काम नहीं करता ये, क्योंकि एडिक्शन हो चुकी होती है, निकोटीन जो उसमें है वो एडिक्ट बना चुका होता है तंबाकू जो उसका। आप ये देखें कि अब तो ये है कि आप अंदाजा कीजिए कि पहले दूसरे मुल्कों में हम देखा करते थे, आज से 10-15 साल पहले दूसरे मुल्कों में सिगरेट की डब्बियों पे फिर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, पब्लिक प्लेसेस पर पीने में पाबंदी होती थी, 21 साल या 18 साल से कम उम्री पे पाबंदी यहाँ पर भी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग उसी तरीके से उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब तो इश्तिहार भी नहीं चलते, पहले तो आपको याद है कि उसको ग्लैमराइज किया जाता था, जैसे बता रही थी मदिया के जी, अब बड़े जो हमारी इंडस्ट्री के आइकॉन्स होते थे उनको सिगरेट पीता वो मालबोरो मैन हुआ करता था, जिसके बाद बहुत आइकॉनिक एक कैप होता था, एक अच्छी जैकेट और उसकी ड्रेस पैंट और उसके ट्राउजर्स। सिगरेट पीने के बाद सिर्फ उसके कपड़े बचे, वो खुद नहीं बच सका। मैं आपसे अर्ज करूं, सिगरेट ने उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं छोड़ा, क्योंकि छोड़ती भी नहीं है सिगरेट कोई ऑर्गन। तो हम ये ध्यान में रखें, वो जो ग्लैमराइज किया जा रहा है, दैट इज अ वेरी फॉल्स पिक्चर दैट इज पेंटेड टू अवर यंगस्टर्स। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फिलहाल पल्मोनोलॉजिस्ट, और हम बात कर रहे थे कि कितना मुज़रे सेहत है सिगरेट हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे लिए वो लोग जो स्मोक करते हैं बल्कि जो उनके साथ उनके अहले खाना है उनके लिए और दूसरों के लिए भी खतरा है, अपने लिए भी खतरा है। और फिर ये देखें कि बच्चे, मैं बारहा कहता हूँ कि बच्चे वो करते हैं जो आप कर रहे होते हैं, आपके कहने का कम असर होता है, आपके करने का ज़्यादा होता है, तो उनको करके दिखाएं, ज़िंदगी आसान रहेगी।